आई थिंक मैं मार्केटिंग से कॉमेडी में इसलिए आ गया क्योंकि दोनों एक तरह से बहुत सिमिलर चीजें। जो देखता है उसको लगता है ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। Please welcome Kumar Varun. Good evening, everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity to display my skill set and share my expertise on the given topic. Types of people in an office, or as we say in MBA, workforce diversity analysis within the corporate ecosystem. Let me start with my intro. Let's see. Yes. With regards to my qualifications, I am engineering graduate. Anyone? Engineer? Obviously. I did my BTech in biotechnology. Anyone? Okay. One person? Feeling sorry. After engineering, I did a job in IT industry, which I hated. I was like a food vlogger who has loose motion. Then I took CAT. My CAT percentile was 99.3. People were like, wow, Varun, 99.3 percentile. You must really want to do MBA. I was like, no, I really want to quit IT. Did my MBA from FMS Delhi. Anyone? Anyone from FMS Delhi? 1, 2. Oh, wow. FMS plus biotech. ये मेरे सामने शीशा किसने लगाया? Did my MBA at FMS Delhi. FMS Delhi was my dream B school. क्योंकि यहाँ 10 लाख का MBA 10,000 रुपए में मिल रहा था. ये कैसा MBA कोर्स है जिसकी पेमेंट मैं UPI से कर सकता हूँ? Post MBA, started work as brand manager. Anybody from marketing? Brand? Anyone? A lot of people have this misconception that brand managers don't actually do anything. That's not true. I have listed some of my achievements as a brand manager. Are you ready? Improved brand visibility by making every logo 17% bigger. Successfully spearheaded the phrase brand synergy in team meetings across departments. Consistently made up 43% of all stats and data in various PowerPoint presentation, including this. Proved brand loyalty by ensuring that even my handkerchief and underwear followed brand colors and brand guidelines. Enough about me. Let's get back to the topic. Types of people in an office. Before I start, as an MBA, I want to do some context setting. Okay. First and foremost, it's important to understand the kind of job that we'll be talking about today. And like an MBA, I have come with Venn diagram. I have done a lot of research, people. 10 years since MBA, this is my 11th year. बहुत research किया मैंने. I think my research says, there are 3 types of jobs. Enjoyable, well-paying, respected. Some jobs pay you very well, but you don't enjoy doing it और आपकी इज्जत नहीं है. For example, investment banker. ये रोता भी है तो डॉलर से आंसू पूछता है, but इसकी इज्जत कोई नहीं करता. Some jobs which are respected, not much enjoyable, not so well-paying. For example, teacher. No jokes. आगे बढ़ते. Some jobs which are very enjoyable don't pay well, respect भी कम है. For example, bartender. दिन भर ऐसे कर रहा है कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया. Just like every Venn diagram, there is overlap. There are some jobs which are respected and well-paying, but not really enjoyable. For example, IAS, IPS, government official. Some jobs that are enjoyable and respected, but not that well-paying. For example, athletes. But this does not include cricketers, just clarify. Some jobs which are enjoyable, well-paying, but no respect.
For example, influencers. There are some jobs which are respected, enjoyable, well-paying, everything, which is politicians. They are very good. They enjoy their work, social service. Now you must be wondering कि आप लोग कहाँ हैं? आप तो आए नहीं वेन डायग्राम में. You are here because heart of the heart, you all know that your job is neither enjoyable, nor well-paying, and nor respected. And that is why you are my audience. This presentation has been made exclusively for you guys. Now ready? We'll start about different kinds of employees. I'll start with my favorite kind of employee. इस इंसान ने एक ऑफिस के सारे सिंगल हैक्स और जुगाड़ ढूंढ लिए. वी कॉल हिम हैकर एम्प्लॉय. आप कुछ भी कर रहे हो आपके सीट पे आ जाएगा. आप काम कर रहे हो आ जाएगा. ओए क्या कर रहा है यार? वो ईमेल भेज रहा हूँ यार, 6 बजे का बोला था. अबे ईओडी बोला था. ईओडी का मतलब 6 बजे नहीं होता है भाई, 11:59 होता है. पागल है क्या? देख तू 6 बजे भेजेगा, बॉस अभी देख के 10 फीडबैक भेज देगा, तो 11:59 पे भेज. बॉस जब तक सुबह उठ के फीडबैक देगा नए नए काम आ जाएंगे. बच गया तू. बट इसी एम्प्लॉय का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है सुपरस्टार एम्प्लॉय. इस एक इंसान से पूरा ऑफिस परेशान रहता है. सबसे ज्यादा गॉसिप इसी की हो रही होती है. ये आदमी है कि मशीन. ऑफिस का काम भी कर रहा है, साइड में 6 सिग्मा का कोर्स भी कर रहा है, अपना पॉडकास्ट भी चला रहा है, कीटो डाइट भी चलता है. ऐसा लग रहा है देश का आधा जीडीपी यही जनरेट कर रहा है भाई. अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है. उस दिन बॉस ने बोला ग्रेट कंपनीज आर बिल्ट ऑन सॉलिड फाउंडेशन. बेसमेंट में चला गया, कंक्रीट मिक्स करने लग गया यार. बट देखो एम्प्लॉयज की बहुत बात होगी. एम्प्लॉयज बहुत अनोइंग है, ये है, बहुत डाइवर्स है, वगैरह वगैरह. बट वी शुड एंटर आवर सेकेंड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज kind of people that employees can never match. Bosses. I want to start with my favorite kind of boss. ज्ञानी बॉस. इस आदमी का काम है सिर्फ प्रवचन देना. डाउन साइजिंग के टाइम बोलेगा गाइस व्हाट टू डू, इट्स लॉ ऑफ नेचर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और अगर तुमको बेटर जॉब मिल गई, तुम इनके पास गए तो कहेगा व्हाट इज दिस वरुण, यू आर लिविंग अस फॉर अनदर कंपनी. सर वो सैलरी ज्यादा दे रहे हैं सर. तो क्या हुआ, कोई मिलियनर तुम्हें अडॉप्ट करेगा तो अपने पेरेंट्स को छोड़ दोगे? Where is your loyalty? एक दिन कहता है वरुण यू शुड ज्वाइन 5 AM क्लब. Have you heard of it? You know research says that most billionaires wake up at 5 AM. मैंने कहा हाँ, क्योंकि उनको आधी रात को तेरे मेल का रिप्लाई नहीं करना होता है ना. दूसरा है हमारा अगला बॉस जो कुछ भी ढंग से बोलता नहीं है. वेग फीडबैक बॉस. आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी एफर्ट डाल दो, दुनिया की बेस्ट पीपीटी बना दो, इस इंसान का एक ही फीडबैक आता है, यार मजा नहीं आया. कुछ बॉस थोड़े हटके भी होते, विच आई लाइक टू कॉल साइड पैशन बॉस. Let me explain what a side passion boss is. ये बॉस आमतौर पे बाकी बॉसेस की तरह आपको एक्सप्लॉइट करेगा, सब कुछ बाकी सब नॉर्मल है इसमें. बट और कुछ हो ना हो, एक बार आपको इस बॉस का साइड पैशन पता लग जाए तो फिर आप समझो कि आपको इस इंसान से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिल गया. क्योंकि फ्यूचर में जैसे ही ये इंसान तुम्हें काम पकड़ाएगा, हमारा हैकर एम्प्लॉय आएगा, एक दाना डालेगा और इसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा. For example, guys, where are those files that I asked you to send last night? Sir, please यार, आप चिल्लाइए मत सर. आप जैसे ब्लेस सिंगर की आवाज को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सर. अरे ब्लेस सिंगर नहीं नहीं यार, मैं कहाँ यार ब्लेस सिंगर. तब तो प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलता है और रियाज नहीं किया. अरे सर क्या बात कर रहे हो सर.
ऑफ साइड पे जब अपने चौधरी का चांद आया था सर, सर ऐसा गूसबम्स आ गए थे सर, क्या अरे अच्छा ऐसा गूसबम्स आ गए थे, अरे हाँ सर व्हाई डोंट यू वंस इफ यू डोंट माइंड, अरे पागल है क्या, ऑफिस आवर चल रहा है, ऑफिस आवर में थोड़ी है, अरे नहीं सर प्लीज सर जस्ट वंस, अरे सर मेरी मीटिंग है यार 4 बजे, सर प्लीज लिटिल बिट, अरे सुपर बॉस आ रहे हैं यार क्या, सर प्लीज सर, चेहरा है जैसे झील, मेरी कार में मेरा गिटार रखा लिया ना, हंसता। चलो, now we have done bosses, we have done employees, now we enter department matrix. High income, low income, high productivity, low productivity. This is basis many factors. Some reality, some perception. High productivity, high income. Sales. Low productivity, high income. Marketing. Low income, high productivity. Human resource. Low income, low productivity. Interns. Interns are so ignored in a company कि even I am not going to talk about them. So let's start with marketing. I think मैं marketing से comedy में इसलिए आ गया क्योंकि दोनों एक तरह से बहुत similar चीज़ें। हम दोनों के जॉब को देख के जो देखता है उसको लगता है ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए पीपीटी इज लाइक व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया इज टू अ सेल। ये हमारा पावर हाउस है, इसके बिना हम फंक्शन ही नहीं कर सकते। पीपीटी बनाने के अलावा और हम करेंगे भी क्या? सारा काम तो मार्केटिंग ने आउटसोर्स कर रखा है टू अ टीम कॉल्ड एजेंसी। इफ यू नोटिस, मार्केटिंग और एजेंसी में सिर्फ कपड़ों का फर्क होता है। एजेंसी वही लोग हैं जो मार्केटिंग करना चाहते थे बट कैट नहीं निकला, तो अब ये कूल हेडफोन्स और शॉर्ट्स पहन के कॉम्पनसेट करते हैं। ये लोग हर चीज में दिखाते हैं कि मार्केटिंग से भी एक लेवल ऊपर है। अगर मार्केटिंग टाइगर श्रॉफ है तो एजेंसी जैकी श्रॉफ है। मार्केटिंग चावल है तो ये रिजोटो है। अगर मार्केटिंग उबले हुए सिंगाड़े हैं तो ये स्टीम्ड वाटर चेस्टनट है। इनकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। मार्केटिंग वालों को 4 इतने खराब आइडिया पिच करो कि 5वें ईमेल में जो भी भेजो मार्केटिंग वाले अप्रूव कर देंगे। और अगर मार्केटिंग वालों ने अप्रूव नहीं किया तो एजेंसी भेजती है जंग का पैगाम। शुड वी हैव अ फुल टीम मीटिंग टू ब्रेनस्टॉर्म दिस फर्दर, विच ट्रांसलेट्स टू कि तू बाहर मिल, तू अपने बंदे ला, मैं अपने बंदे लाता हूं, फिर बैठते हैं। इस मीटिंग का नाम रख देना चाहिए बैटल ऑफ बुलशिट। दोनों के बीच बैटल शुरू होती है। ये ले हाइपर लोकल मार्केटिंग, ये ले तू सेगमेंटेड एक्टिवेशन, नहीं साले ये ले रिड्यूस चर्न रेट, अबे रिड्यूस चर्न रेट मारेगा, ये ले की मेट्रिक प्रायोरिटाइजेशन, ये ले सैनिटाइज कंटेंट डिलीवरेबिलिटी, ये ले एसी ऑप्टिमाइजेशन विद एबी टेस्टिंग, ये ले इनबाउंड मार्केटिंग एम्ड एट लीड जनरेशन, साले ये ले बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस टू लेवरेज कोर कॉम्पिटेंसी, साले क्या भेज रहा है, ये ले हाई इंपैक्ट वैल्यू एडेड ग्रोथ हैकिंग स्ट्रेटजी, साले ये ले होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स डिप्लॉयिंग क्रॉस चैनल मार्केटिंग। और जब एक साल में 1000 मैराथन मीटिंग्स करने के बाद ये अपना आइडिया लेके अपने बॉस के पास जाते हैं तो बॉस कहते हैं यार मजा नहीं आया यार। थैंक यू एवरीवन, यू बीन अ लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।